Hello students. In the previous video, we have learned about Gauss law and we have seen one of its application. And the application was electric field due to infinitely long charged wire. Here we are again with the video in which we are going to see few more applications which are available in class 12th syllabus, which are number one, the electric field due to infinitely long charge sheet. Second is electric field due to uniformly charged spherical shell. And third one is electric field due to uniformly charged insulating sphere. Before going through these applications, I just want to remind you few points that how we are going to apply Gauss law. So we are going to apply Gauss law in such a manner that the charge, जो भी हमें charge दिया गया होगा बेटा, system of charge दिया गया होगा, if that system of charge is not placed in the Gaussian surface or in the closed surface, then we'll draw a Gaussian surface. Once the Gaussian surface is drawn, what we have to do is we have to see that this Gaussian surface must be symmetric from the point or continuous distribution of charge. Third point is we have to draw the electric field lines from the given charge distribution. Then we have to draw the area vector. And finally, we have to find the angle between electric field and area vector and hence apply the formula that is phi is equal to E ds cos theta is equal to Qn upon epsilon naught. So let's see how we are going to apply this Gauss law for infinitely long charge sheet. How does the infinitely long charge sheet is going to look is in this manner. Suppose this is a sheet and this is positively charged sheet of infinite length. So what we have to do is this is placed in the open surface. We don't have any closed surface. So what we have to do is we have to draw a Gaussian surface first. And in the Gaussian surface, we cannot fully, हम इसको पूरी तरीके से क्या नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते. जब हम इसको पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकते बेटा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक सम पार्ट ऑफ इट. और उस पार्ट के लिए जो गॉसियन सरफेस आएगा वो सिंपल सी बात ये है कि अगर कोई भी पॉइंट पी होगा तो उस पॉइंट से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर आपको सेम मिलनी चाहिए. यहाँ पर भी आपको हर जगह पर वो चीज कैसी मिलनी चाहिए, सेम मिलनी चाहिए. So for this what we have to do is we have to draw the Gaussian surface as a cylinder. And once the Gaussian surface is drawn as a cylinder, what we have to do is we have to draw electric field lines. अब ये बिल्कुल जो शीट है, दिस शीट इज जस्ट लाइक अ पेपर. तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो इसी डायरेक्शन में बनेगी बेटा. और यहाँ से जो बनेगी वो इस डायरेक्शन में बनेंगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. एक बार अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनने के बाद हाउ मेनी सर्फेसेस आर देयर, देयर आर टोटल 3 सर्फेसेस. और तीनों सर्फेसेस का क्या बना ले बेटा, एरिया वेक्टर. इसका जो एरिया वेक्टर बनेगा वो इसी डायरेक्शन में बनेगा, दैट विल बी ds1. इसका जो एरिया वेक्टर बनेगा वो इसी डायरेक्शन में बनेगा, दैट विल बी ds2. और ये जो तीसरा वाला जो एरिया है इसका एरिया वेक्टर किधर बनेगा बेटा, ऊपर की डायरेक्शन में, दैट विल बी ds3. सो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई कि हाउ मच will be the flux through these surfaces. So phi will be equal to phi 1 plus phi 2 plus phi 3. Phi will be equal to phi 1 will be E into ds1 cos theta 1 plus E into ds2 cos theta 2 plus E into ds3 cos theta 3. So electric field through first surface and area vector are in the same direction. So theta 1 is going to be 0 degree. Theta 2 will also be 0 degree because in that case also the direction of electric field and area vector is in the same direction. So theta 2 will be 0 degree. What about theta 3? Theta 3 will be electric field is in this direction and area vector is in this direction. So here we are going to get the angle as 90 degree. So theta 3 will be 90 degree. So phi will be equal to E ds1
what is the area of this surface? Suppose the area of this cross section is A, so the area of this cross section will also be A. So E into A, ds1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? ds1 will be equal to ds2 एंड वो कितना मान ले बेटा हम लोग? A मान लिया हमने कि भैया यहाँ पर जो भी हमारे सर्कुलर सेक्शन है उसका एरिया कितना है? A है. तो EA यहाँ पर भी मिलेगा and here also we are going to get E into A. So flux is 2EA and 2EA is equal to Q in upon epsilon naught. So it's up to us how much charge we are going to consider in the Gaussian surface. So what I have done is I had considered the total charge in the Gaussian surface as Q. So this can be written as Q upon epsilon naught. So EA is equal to 2EA is equal to Q upon epsilon naught. So E will be equal to Q upon 2 epsilon naught A. और Q by A क्या हुआ करता था बेटा? Q by A is sigma upon 2 epsilon naught. So वही काम करना है हमें. We have to apply the Gauss theorem. और गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमने जो भी हमें कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया उसको हमें गॉसियन सरफेस के अंदर बंद करना पड़ेगा. उसको हमने गॉसियन सरफेस के अंदर बेटा बंद किया. गॉसियन सरफेस में बंद करने के बाद वी हैव टू ड्रॉ द एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाद जितने भी हमारे सरफेसेस हैं उन सबके एरिया वेक्टर्स बनाने हैं. उन सबके बीच में एंगल्स फाइंड कर लेने हैं हमें. एक बार आपको एंगल मिल गए तो एंगल मिलने के बाद आप फ्लक्स निकाल लेंगे और फ्लक्स को आप क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर रख सकते हैं. तो इससे आपको E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A मिल गया. दिस E इज इक्वल टू जो एक्सप्रेशन आया है हमारे पास, दिस इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. दिस एक्सप्रेशन इज independent of the distance of the point at which we have to find the electric field. Find the electric field from the given sheet. मीन्स अगर ये कोई भी है मेरे पास जो शीट होगी बेटा, इस सिंगल शीट की वजह से अगर मुझसे कोई किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर पूछेगा तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर पूछेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर पूछेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर पूछेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन. मतलब हर एक पॉइंट पर जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी constant. So this expression means electric field is independent of the distance of a point at which we have to find the electric field from the given sheet. तो सिंपल सी बात ये कि फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मेरे पास फॉर्मूला होगा दैट विल बी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पर एक चीज हमने जो यूज की है बेटा, वो एरिया की जगह पर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पर आपने पाई आर स्क्वायर क्यों नहीं रख दिया सीधे सीधे. तो बेटा पाई आर स्क्वायर इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये जो भी हमारी शीट है, इस शीट को हम चाहते तो इस शीट को एक और गॉसियन सरफेस में हम बंद कर सकते थे. और वो गॉसियन सरफेस क्या होता है बेटा? दैट गॉसियन सरफेस विल बी क्यूब और क्यूबॉइड. कैसे? ये देखिएगा, मान लो बेटा एक पेपर है, एक बुक है आपके पास, और उस बुक का जो सेंटर पेज है, वो सेंटर पेज के इस साइड से अब जो भी सेंटर पेज है उस सेंटर पेज को आप पकड़ लीजिए और पकड़ने के बाद उस बुक को बंद कर दीजिए. और बंद करने के बाद आप जो देखेंगे वो क्या देखेंगे? उसका कवर पेज, उसका बैक पेज और उसके साइड वाले जो फेसेस हैं उसमें वो हर जगह से आपको क्या मिलेगा? इक्वी डिस्टेंट मिलेगा. जो भी शीट आप प्लेस करेंगे वो कैसी मिलेगी आपको? इक्वी डिस्टेंट मिलेगी. तो यहाँ पर आपका गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर भी हो सकता था और एक क्यूब भी हो सकता है. इसलिए हमने यहाँ पर एरिया की जगह पर ए प्लेस किया. तो उससे हमें सीधे सीधे एक्सप्रेशन पता चल गया दैट इज E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. तो भैया सिंगल शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मेरे पास फॉर्मूला आएगा दैट विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट.
अब मान लीजिए मेरे पास दो शीट्स दे दी, एक शीट सपोज ये है बेटा और एक दूसरी शीट ये है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है और ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। यहाँ पर इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, यहाँ पर इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2, ये पॉजिटिव ही होगी क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिव ही होगी क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। किसी ने मुझसे बोला कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए ड्यू टू दीज टू शीट्स, यहाँ पर बताइए और यहाँ पर बताइए। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 या पॉइंट और रीजन 1, 2 एंड 3, इन तीनों ही रीजन्स पर मुझे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कैसे निकालेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड? देखो भैया यहाँ पर कितनी शीट्स है हमारे पास, अब दो शीट्स है बेटा, तो ऑब्वियसली बात है इस वाले शीट की वजह से जो भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे की डायरेक्शन में होगी, मतलब इसी डायरेक्शन में बननी चाहिए। तो दिस इज शीट नंबर 1 एंड दिस इज शीट नंबर 2। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट नंबर 1 विल बी अवे, ड्यू टू 2 भी किधर होगी बेटा, अवे की डायरेक्शन में होगी, यानी कि दिस विल बी E2। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन विल बी E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू, E1 सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 कितना है, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस शोज 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ऐसे रिलेशन हमें देखने को मिलेगा। सेकंड रीजन की अगर हम बात करें तो सेकंड रीजन में फर्स्ट वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे और सेकंड वाले की वजह से भी किधर मिलेगी बेटा, अवे, यानी कि दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2। तो यानी कि यहाँ पर जो मुझे ई नेट मिलेगा दिस विल बी E1 माइनस E2, और E1 कितना है, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 कितना है, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 यहाँ पर रिलेशन मिलेगा। आप चाहते तो इसको उल्टा भी लिख सकते थे, E2 माइनस E1 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। थर्ड वाले रीजन में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, यानी कि ये देखो बेटा अवे, सेकंड वाले की वजह से भी अवे यानी कि E2। तो E नेट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, E1 प्लस E2, और E1 कितना है, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 कितना है, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा 1 सॉरी 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमें अलग अलग रीजन पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिली बेटा। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2018 CBSE एंड इट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 नंबर में ये क्वेश्चन आया था। इसी तरीके से हमें कुछ 3 शीट्स रख कर दी हुई थी, तो अगर यहाँ पर 3 शीट्स रखी हुई होती तब भी आपको पता है कि क्या करना है। सपोज दिस इज पॉजिटिव, एक और शीट दे दी सपोज बेटा ये नेगेटिव है, और तीसरी वाली आपको दे दी सपोज ये पॉजिटिव रखी हुई है, और इन सब की डेंसिटी दे दी, और डेंसिटी क्या दे दी, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3। तो सिंपल सी बात, ये सिग्मा 1 है, मतलब ये जो भी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो हमें सिर्फ ये नेगेटिव साइन बताएगा, बाकी हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज फर्स्ट शीट, सेकंड शीट एंड दिस इज थर्ड शीट, यानी कि फर्स्ट वाले की वजह से जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर होगी बेटा, अवे की तरफ। सेकंड वाले की वजह से टुवर्ड्स होगी, यानी कि दिस इज E1, दिस विल बी E2, और थर्ड वाले की वजह से भी अवे होगी, यानी कि E3। तो यानी कि यहाँ पर जो मुझे ई नेट मिलेगा, ई नेट कितना मिलेगा, ई नेट विल बी E1 प्लस E3 माइनस ऑफ E2। E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 सॉरी, E3 की वैल्यू सिग्मा 3 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की वैल्यू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 माइनस ऑफ सिग्मा 2। सेम इसी तरीके से बेटा वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, दिस रीजन, दिस रीजन। कोई भी एक और रीजन पे मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ बेटा। सपोज इस वाले रीजन पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो फर्स्ट वाले की वजह से अवे, सेकंड वाले की वजह से टुवर्ड्स, थर्ड वाले की वजह से अवे, अवे इससे दूर, इससे दूर, यानी कि ये इससे दूर E1, इसकी तरफ E2, इससे दूर यानी कि E3।
जो मेरे को ई नेट मिलेगा दिस विल बी, ई नेट जो मुझे मिलेगा दिस विल बी E3 प्लस E2, और इसमें से मैं क्या माइनस कर दूं, E1 माइनस कर दूं। तो ई नेट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, सिग्मा 3 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डिनोमिनेटर बिकम्स कॉमन, सो दिस विल बी सिग्मा 3 सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1। ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। So these are the several ways to find the electric field due to the combination of infinitely charged sheet. So this was the second application. First application बेटा हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में ही देखी थी. In that video there was the electric field due to a infinitely long charged wire, और उसकी वजह से जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला मिला था, that formula was E is equal to infinitely long charged wire की वजह से कितनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, infinitely long चार्ज्ड वायर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही थी। यहाँ पर तो हमें ग्राफ देखने को मिला था, और वो ग्राफ क्या देखने को मिला था, ई वर्सेस आर, ऐसा ही ग्राफ देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर जो हमारा एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन तो क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी कि यहाँ पर जो भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द डिस्टेंस, जो भी हमारी डिस्टेंस आर होगी उससे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगली अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो थर्ड एप्लीकेशन थर्ड एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल की अगर हम बात करें बेटा, तो शेल कैसी होती है, अंडे जैसी खाली होगी भैया। तो अगर शेल हमारी खाली होगी तो कैसी होगी, स्फेरिकल होनी चाहिए सबसे पहली बात तो स्फेरिकल हो गई, ये रही हमारी शेल। चार्ज ऑब्वियस सी बात है हवा में तो रहता नहीं, इट नीड्स अ सरफेस। तो यहाँ पर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज आर, और इसके ऊपर, इस शेल के ऊपर सारा का सारा चार्ज रहेगा बेटा। ये जो टोटल चार्ज है इस शेल के ऊपर वो हमने कितना मान लिया, सपोज Q है, कितना चार्ज है, Q। तो ऑब्वियस सी बात है इन दिस केस वी आर गोइंग टू गेट 3 रीजन्स। गॉसियन सरफेस जो बनेंगे बेटा वो 3 अलग अलग गॉसियन सरफेस बनेंगे। फर्स्ट गॉसियन सरफेस कैसा होगा, तो अगर मैं फर्स्ट गॉसियन सरफेस की बात करूं, तो फर्स्ट गॉसियन सरफेस, जो भी मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा वो सपोज मैं आर, जो भी गॉसियन सरफेस बनाऊं उसकी रेडियस गिवन रेडियस से छोटी होगी, मतलब कुछ ऐसा सरफेस मैंने अज्यूम किया। तो अगर मेरे गॉसियन सरफेस की रेडियस, इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, इफ द रेडियस ऑफ Gaussian surface is less than the radius of spherical shell, तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो मिलेगी बेटा हमें, वो भी हम देखेंगे। सेकंड कंडीशन विल बी इसके बराबर हो जाए, थर्ड कंडीशन विल बी ग्रेटर देन हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग गॉसियन सरफेस से अगर कम है रेडियस, मतलब गॉसियन सरफेस जो है उसकी रेडियस कम है, तो इस केस में अगर मैं गॉस लॉ अप्लाई करने की कोशिश करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड E ds cos theta this will be equal to Q in upon epsilon naught, यही होता है बेटा। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान दूं, here we are not having any kind of charge in it, so if there is no charge it means that Q in will be 0 upon epsilon naught, so E inside the shell, this will be 0। पहला केस आ गया। सेकेंड गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, such cases were not possible in the previous 2 applications बेटा,
बट यहाँ पर ये तीनों इस तरीके के केसेस पॉसिबल है। सेकंड गॉसियन सरफेस कैसा होगा, जो भी हमारा गॉसियन सरफेस है वो सपोज अब कैसा हो गया, इसकी रेडियस और जो हमारा गिवन स्फेरिकल शेल है उसकी रेडियस बराबर हो गई, मतलब r इज इक्वल टू आर हो गया। तो अगर r इज इक्वल टू आर हो गया, इफ रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस is equal to radius of spherical shell, अगर ऐसी कंडीशन हो गई तो बेटा E on the surface we are going to find into ds cos theta is equal to q in upon epsilon naught. If the Gaussian surface is same as that of the surface, so total charge will be capital Q upon epsilon naught. So electric field lines कैसी बनेंगी बेटा इस केस में, electric field lines will be like this only, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी इसी डायरेक्शन में बनेगा, यानी कि यहाँ पर E और ds के बीच में थीटा विल बी 0 डिग्री. So E surface we have to find, and what is the surface area, 4 pi r square is equal to q upon epsilon naught. So E surface will be q upon 4 pi epsilon naught r square. So this will be the electric field on the surface of the charged spherical shell. थर्ड गॉसियन सरफेस कैसा हो सकता है, तो अगर मैं यहाँ पर आपको थर्ड गॉसियन सरफेस दिखाऊं तो थर्ड गॉसियन सरफेस कैन बी आउटसाइड द शेल, बड़ा हो जाए, है कि नहीं. तो थर्ड गॉसियन सरफेस विल बी ये तीनों क्यों अलग अलग पढ़ना पड़ रहा है बेटा, सिंपल सी बात, रेडियस बड़ी है, छोटी है, बराबर है, देयर विल बी 3 डिफरेंट केसेस, सो वी हैव टू डील इन दी 3 डिफरेंट वेज. सो फर्स्ट केस वाज, फर्स्ट गॉसियन सरफेस वाज जहां पर हमने आर जो है वो बड़ा छोटा जैसा भी माना. दूसरा केस था तो वहां पर हमें चार्ज हमें 0 मिल रहा था. इस वाले केस में रेडियस जो है वो दोनों ही बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है इस केस में जो भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो इसी डायरेक्शन में बनेंगी, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा सरफेस का वो भी इस डायरेक्शन में बनेगा. वो चीज हमें यहाँ पर देखने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी थी क्योंकि यहाँ पर तो हमारा चार्ज ही नहीं था, अंदर किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं था, चार्ज 0 था. तो चार्ज 0 था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी नहीं, तो वो चीज हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी. अब थर्ड वाला केस है, तो यहाँ पर r is greater than r, मतलब radius of Gaussian surface is greater than radius of spherical shell. तो बेटा अगर ये गॉसियन सरफेस बड़ा भी हो गया तब भी तो सारा का सारा चार्ज इसके अंदर ही है, इस वाले गॉसियन सरफेस के अंदर ही है सारा का सारा चार्ज, तो वो क्यों इनकी टेंशन तो खत्म हो गई. और एरिया वेक्टर भी, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही एंगल बना रहा होगा, यानी कि एंगल भी यहाँ पर, सो थीटा विल बी 0 डिग्री, पहली कंडीशन, एंड क्यू इन विल बी कैपिटल क्यू. सो ई आउटसाइड into ds cos 0 degree will be equal to q upon epsilon naught. So E outside will be ds area of Gaussian surface. तो यहाँ पर ये जो Gaussian surface है इसका एरिया कितना होगा, इसकी रेडियस तो स्मॉल r है, यानी कि this will be 4 pi small r square is equal to q upon epsilon naught. So E outside will be q upon 4 pi epsilon naught r square. So all the 3 कंडीशन, अब इसके अलावा और कोई कंडीशन बन नहीं सकती बेटा, सरफेस के अंदर, सरफेस पर, और सरफेस से ज्यादा अगर मेरा बड़ा गॉसियन सरफेस हो गया. तो तीनों ही केसेस में मुझे कुछ रिजल्ट्स मिले हैं बेटा. इन रिजल्ट्स को ध्यान में रखकर अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, क्या क्या रिजल्ट मिले मुझे, सबसे पहला जो रिजल्ट मिला दैट इज ई सरफेस, सॉरी ई इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी मिली, 0. ई सरफेस कितना मिला बेटा, q upon 4 pi epsilon naught r square. So E outside will be q upon 4 pi epsilon naught r square. So E outside will be q upon 4 pi epsilon naught r square. So E inside will be q upon 4 pi epsilon naught r square. So E inside will be q upon 4 pi epsilon naught r square. So E inside will be q upon 4 pi epsilon naught r square. So E inside will be q upon 4 pi epsilon naught r square. So E inside will be q upon 4 pi epsilon naught r square. So E inside will be q upon 4 pi epsilon naught r square. So E inside will be q upon 4 pi epsilon naught r square. So E inside will be q upon 4 pi epsilon naught r square. So E inside will be q upon 4 pi epsilon naught r square. So E inside will be q upon 4 pi epsilon naught r square. So E inside will be q upon 4 pi epsilon naught r square. So E inside will be
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ई आउटसाइड कितना मिला, आउटसाइड विल बी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। अगर मैं ध्यान से देखूं और मैं ई और आर के बीच में ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, दिस इज ई एंड दिस इज आर, इसी रेडियस को हम वेरी करा रहे थे, तो जब तक r इज इक्वल टू आर है तब तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहने वाली है मेरी, जीरो रहने वाली है बेटा, इनसाइड वाली बात थी जब तक, ठीक। सरफेस पर मैं जैसे ही पहुंचा, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कितनी मिली, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्या ये r जो है ये बड़ा है ना इससे, बिकॉज दिस इज आउटसाइड, तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर, यानी कि यहां से ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू तो यही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर r की वैल्यू बड़ी, यानी कि ये छोटा होते चला जाएगा, मतलब r से बड़ी वैल्यू है ये, तो ये छोटा होते चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग कर्व मिलेगा, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सो अगर r की वैल्यू लेस देन r है तो ये कंडीशन, r की वैल्यू ग्रेटर देन r है तो ये कंडीशन, और r की वैल्यू जब बराबर है तो ये कंडीशन, यानी कि तीनों ही कंडीशंस हमें देखकर इस ग्राफ पर ध्यान देना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट वाज आस्क्ड इन 2015 सीबीएसई, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई भी शेल है तो इन दैट शेल वी आर गोइंग टू हैव थ्री केसेस। व्हाट आर द थ्री केसेस, इनसाइड, सरफेस एंड आउटसाइड, बिकॉज गॉसियन सरफेस एक आर्बिट्ररी सरफेस है, और वो आर्बिट्ररी सरफेस तीन तरीके से यहाँ पर वेरी हो सकता है। इनसाइड तक अगर गॉसियन सरफेस रहेगा तो क्या होगा, सरफेस पर आ जाएगा गॉसियन सरफेस तो क्या होगा, और उसके आउटसाइड होगा तो क्या होगा। तीनों ही केसेस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी मिल रही है, अलग अलग मिल रही है, डिफरेंट मिल रही है, तो इस चीज पर आपको ध्यान देना है। दिस ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ग्राफ्स को तो बिल्कुल रट लेना है, समझ लेना है अच्छे से, बिकॉज ग्राफ के क्वेश्चन कम से कम कुछ नहीं तो 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आपको ग्राफ के मिलते हैं आपके पूरी 12th स्टैंडर्ड की बुक में। तो 12th स्टैंडर्ड की बुक में मुश्किल से आपके जो टोटल ग्राफ होंगे वो 25 to 30 ग्राफ्स होते हैं जिनको आपको याद रखना होता है, और उनमें से 4-5 नंबर या 6 नंबर के ग्राफ के क्वेश्चन या ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। यहीं पर हम एक और एप्लीकेशन की बात करें तो वो एप्लीकेशन है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इंसुलेटिंग स्फीयर। सबसे पहले इंसुलेटिंग और कंडक्टिंग स्फीयर में डिफरेंस समझते हैं। अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर लिखा हुआ होता बेटा तो जो शेल वाला जो डेरिवेशन था वही सेम डेरिवेशन हमें करना होगा। कंडक्टिंग मतलब, अब यहाँ पर दो कंडीशंस आ गई। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंडक्टिंग की, कंडक्टिंग शेल अगर होती तो, कंडक्टिंग स्फीयर होता तो whole charge will reside on the surface of the conductor, on the surface of the conductor। सारा का सारा चार्ज कहाँ पर रिसाइड करेगा, सरफेस ऑफ द, मतलब अगर ये सॉलिड भी होता तो यहाँ पर जो भी आपका चार्ज है वो सारा का सारा चार्ज कहाँ आ जाता, सरफेस पर आ जाता। बट हमें कैसा सरफेस दिया हुआ है, इंसुलेटिंग स्फीयर दिया हुआ है, तो इंसुलेटिंग स्फीयर के केस में क्या होगा, इंसुलेटिंग स्फीयर के केस में कंडीशन दूसरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी कंडीशन, देखिएगा। तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करूं तो ये मेरा एक स्फीयर है। इंसुलेटिंग स्फीयर मतलब जो चार्ज जहां पर आपने प्लेस कर दिया वो वहीं का वहीं रखा हुआ है, यानी कि कुछ इस तरीके से जो चार्ज जहां है वो वहीं का वहीं रखा हुआ है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा है, यूनिफॉर्मली मतलब इसकी डेंसिटी हर जगह पर क्या रहने वाली है बेटा, सेम रहने वाली है। तो डेंसिटी वर्ड आपको सही बहुत अच्छे से पता है, एक बूंद, a single drop of water have the density of 1000 kg per meter cube, whereas C, the quantity of water which is placed in the tank also have the same density as 1000 kg per meter cube, or the water placed in the sea also have the density of 1000 kg per meter cube.
So in such cases, uniform word plays a very important role because uniformity means density is going to remain same. तो यहाँ पर charge की बात है, that means charge density is going to remain same. तो यहाँ पर भी क्या आपको लगता है 3 केसेस बनेंगे बेटा? बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है. So ये this is बेटा positive charge. ठीक. सो यहाँ पर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब यहाँ पर रो यूज होना है, पहली बात. तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर E इनसाइड की बात करूं, जैसे हमने पहले वाले केस में की थी, तो यहाँ पर E इनसाइड का मतलब अब तो मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ बेटा कि R जो है वो छोटा है किससे? गिवन स्फेयर की रेडियस से छोटा है. तो कैसा बनेगा गॉसियन सरफेस? कुछ ऐसा ही बनेगा, स्फेयर फॉर्म में ऐसा ही बनेगा. सो दिस इज गोइंग टू बी माय गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल r. So how I am going to determine the charge inside the Gaussian surface? So beta, if the total charge placed in this sphere is q, so जब volume 4/3 pi r cube है, in that case the charge is q. 1 unit volume में charge कितना हो गया? 3q upon 4 pi r cube. तो जब ये वॉल्यूम इसका 4/3 pi r cube होगा, in that case the charge will be into 4/3 pi r cube. तो 4/3 pi से 4/3 pi कैंसिल हो गया. तो यहाँ पर कुछ हमें रिजल्ट मिला, चार्ज r cube upon r cube. This is the charge inside the Gaussian surface. अब तो कहानी बिल्कुल इजी हो गई. तो भैया पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि जो भी हमारी डायरेक्शन बनेगी वो ऐसे ही बनेगी बेटा, और जो भी हमारा एरिया वेक्टर भी बनेगा वो भी इसी डायरेक्शन में बनेगा, यानी कि E और DS के बीच में जो मेरा एंगल हो गया वो कितना हो गया? 0 डिग्री. सो EDS cos theta will be equal to Q in upon epsilon naught. सो E inside और DS की जगह क्या इसका जो वॉल्यूम है कितना है, सॉरी इसका जो एरिया है वो है 4 पाई r स्क्वायर. यही तो होता है स्फेयर का एरिया, सरफेस एरिया. cos 0 डिग्री, this is equal to QR cube upon R cube. So this will be E inside will be equal to QR cube upon 4 pi epsilon naught 4 pi r square epsilon naught r cube. ये epsilon naught बेटा मैं भूल गया था फॉर्मूले में प्लेस करना, तो r बच गया यहाँ पे. तो दिस इज QR upon 4 pi r cube epsilon naught. ऐसे ही रिजल्ट मिला मुझे. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ E इनसाइड. लेकिन यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं बेटा, इफ आई डिवाइड एंड मल्टीप्लाई इट बाई 3, तो ये Q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, कुछ ऐसे ही रिजल्ट मिला मुझे. और ये मेरा क्या हो जाएगा? डेंसिटी 3 एप्सिलॉन नॉट. ये क्या आ गई मेरी? E इनसाइड आ गई. सो E inside in this case will be रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट. रो भी कांस्टेंट है बेटा, 3 भी कांस्टेंट है, सिग्मा भी कांस्टेंट है, यानी कि E इनसाइड वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. मतलब ये कब की कंडीशन है? जब R की वैल्यू छोटी होगी कैपिटल R से. केस नंबर 2, E ऑन सरफेस. अगर E ऑन सरफेस की अगर मैं बात करूं तो सरफेस के केस में
गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा? गॉसियन सरफेस ऐसा ही बनेगा भैया, ये सरफेस के बिल्कुल ऐसे ही बनता चला जाएगा गॉसियन सरफेस। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर ई डी एस कॉस थीटा विल बी इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस के केस में तो क्यू इन तो कैपिटल क्यू के बराबर ही होगा, और थीटा जो होगा वो 0 डिग्री होगा, और डीएस की वैल्यू जो होगी वो 4 पाई r स्क्वायर, मतलब पूरा का पूरा जो भी स्फेयर था वो सारा का सारा स्फेयर आ जाएगा इसके अंदर। और वो स्फेयर है कितना? 4 पाई r स्क्वायर। यानी कि ई सरफेस और डीएस की जगह 4 पाई r स्क्वायर, एंगल इज 0 डिग्री, क्यू इन इज कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से ई सरफेस जो मुझे मिलेगा दैट विल बी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये आ गई वैल्यू किसकी बेटा? ई सरफेस की। अब तीसरा केस, ई आउटसाइड की अगर हम बात करें, तो आउटसाइड के केस में अगर हम देखें, तो आउटसाइड के केस में ऐसे ही बनेगा गॉसियन सरफेस। दिस विल बी द आउटसाइड कंडीशन, है क्या नहीं? दिस विल बी द आउटसाइड कंडीशन, ऐसे ही बनेगा। तो इस आउटसाइड कंडीशन के केस में फिर से वही काम करना पड़ेगा बेटा। तो थर्ड केस इज ई आउटसाइड। सो ई आउटसाइड के केस में क्यू इन तो सारा का सारा रहेगा, यानी कि क्यू इन की वैल्यू कैपिटल क्यू रहने वाली है बेटा। थीटा अब भी 0 डिग्री रहने वाला है। कैसे? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा 0 डिग्री रहने वाला है। डीएस की वैल्यू क्या 4 पाई r स्क्वायर रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर r की वैल्यू क्या है? बड़ी है कैपिटल R से। यहाँ पर क्या था? r की वैल्यू बराबर थी कैपिटल R के। एंड थीटा पता चल गया हमें, टोटल चार्ज पता चल गया, तो बस ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई की जगह पर ई रखना है क्योंकि ये तो हमें निकालना है आउटसाइड। डी एस विल बी 4 पाई r स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर, एंगल इज 0 डिग्री यानी कि ये हो गया 1। दिस इज इक्वल टू क्यू इन की जगह पर कैपिटल क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ई आउटसाइड यहाँ से कितना मिल गया? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। दिस इज ई आउटसाइड। तो यानी कि 3 कंडीशंस हो गई। क्या क्या 3 कंडीशन हो गई? इफ r इज लेस देन r, तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली थी वो मिली थी रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। r इज इक्वल टू r, तो इस केस में e की जो वैल्यू हो गई वो हो गई q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। r इज ग्रेटर देन r, इस केस में जो e की वैल्यू हो गई दैट इज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। अब इनका बनाना है ग्राफ। तो कैसे बनेगा ग्राफ देखिएगा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज डिस्टेंस r। तो एक कंडीशन तो r इज इक्वल टू r रखनी है। अब यहाँ पर देखो, जब r की वैल्यू लेस देन r है तो यही वाली केस है। और यहाँ पर e मुझे क्या मिल रहा है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r मिल रहा है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो गया भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। कैसी लाइन बनेगी? ऐसी लाइन, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड रहने वाली है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। कब तक ऐसी रहेगी? जब तक ये वैल्यू किसके बराबर ना हो जाए? q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर के बराबर ना हो जाए। और उसके बाद क्या e जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है? तो अगर यहाँ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यानी कि ग्राफ ऐसा हो जाएगा, यानी कि e इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड
the distance r from the center of the charged insulating sphere। जैसे जैसे आप इसको क्या करते चले जाएंगे बेटा, डिस्टेंस को वेरी कराते चले जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है आपको उस तरीके से क्या मिलती चली जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। सो आई होप ये सारी की सारी एप्लीकेशंस आपको अच्छे से समझ में आएंगी बेटा। आप एक बार इनको अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। जो चीज़ ना समझ में आए just ask me or you can comment on the YouTube link. And thank you so much. Stay fit, stay healthy. Thank you so much.